Good evening, everyone. I am Aarti Saur, CEO of Parisar Asha, Center for Educational Research and Training, Mumbai. And I welcome all of you in today's session of Ask the Expert. And this is the third season. So every season we used to invite stalwarts from mental health fraternity. And today we will be talking on a different subject. So today's topic is dementia. And still there is not much of an awareness created about dementia unless and until it really hits somebody from your family member. In fact, today when I had posted this about dementia, the poster about today's session, so many of them, they called me and they said ki, yeah, we would like to know more about this because we also may be finding, like ourselves in that particular, problem maybe in future, or somebody we are not aware that they are actually suffering from dementia. Because many a times we feel, oh, I have forgotten something, मैं कुछ भूल गया हूँ, इधर रखना वहां रखना, I don't know why I have entered the kitchen and I completely forget about that. और many a times हमारे जो senior citizens जो घर के रहते हैं, हम लोग बहुत बार उनके ऊपर चिढ़ते हैं, अरे इनको तो कुछ याद नहीं रहता, how many times I have to tell them, or they keep on repeating 10 times, 20 times the same stories. So let's find out what is this dementia, and this is actually hitting, like our society so badly, but we are not aware unless and until it becomes really, a big problem or big challenge. So let's welcome our today's guest, Dr. Akshay Chorodia. And let me introduce him and welcome doctor, and let me just introduce Dr. Akshay. So Dr. Akshay is a psychiatrist and sexologist. He has completed his MD in psychiatry from Lokmanya Tilak Municipal Medical College and Hospital, Sion, Mumbai. Dr. Chordia has been on the post of assistant professor in the Department of Psychiatry at Sion Hospital. He has been working extensively with various social organizations to create mental health awareness and provide treatment for marginalized population in the community. He has received Lundbeck Academic Excellence Award, that is gold medal, for his work in 2019. He is currently practicing as a consultant psychiatrist at Anandvan Wellness Center, Nalasopara and Virar, and Cure Health Center, Vasai. So welcome, Dr. Akshay. And thank you so much. Yeah, and it's very interesting topic, and like we are really worried that tomorrow we should not be landing in that particular position, or there are so many of our senior citizens who may be like going through this particular problem, and very important challenging situation where the family members get into. Right. Because हमें समझ में नहीं आता, अगर आप में पेट में दर्द है या फिर आपको बुखार आ रहा है, तो वी कैन टेक टू द डॉक्टर, आस्क दैट पेशेंट टू लाई डाउन, एंड उनको हम लोग हर तरीके से वी कैन एम्पथाइज और सिंपथाइज विद देम. बट जब भी ये डिमेंशिया के पेशेंट्स अगर हमारे घर पे रहते हैं, देन वी फील सो एजिटेटेड कि हाउ टू गेट रिड ऑफ देम at certain times. So let's talk about this dementia. So doctor, first question is obviously what is this dementia and how it is different from normal aging? Okay, thank you so much. First of all, I would like to thank Parisar Asha and Aarti ji for inviting me, especially for this topic, because it has been very close to my heart. In my residency days also, I worked with geriatric mental health a lot, and being working in a geriatric setup or a dementia care setup, we have been closely observing the manifestation of this illness, what we call as dementia. Okay, so dementia, I mean, mostly the word dementia is derived from a Latin word called demens, which means going out of mind. But how we understand dementia is that it is illness which affects our memory. यानी हम लोग को लगता है कि ये भूलने की बीमारी है, इसमें आदमी भूल जाता है. ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी लॉस. बट भूलने की बीमारी के अलावा भी इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसका हमें ध्यान होना चाहिए, जिसके बारे में हम अवेयर होने चाहिए. तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे घर में किसी को इस प्रकार का प्रॉब्लम है या नहीं है. सो डिमेंशिया बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, okay, which constitutes all these things. So first symptom is majorly loss of memory, यानी याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है. Second most common symptom is cognition or cognitive deficit. I mean
जब सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, थिंकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। उसके अलावा इसमें हमारी जजमेंट लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके अलावा कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, कुछ बर्ताव में चेंजेस होते हैं, हमारी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस होते हैं, हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ चेंजेस होते हैं, वे टू सोशलाइज वो कैपेसिटी में कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स मिलजुल करके डिमेंशिया का रूप लेते हैं। And it's a very prevalent illness, because according to WHO more than 55 million population in the world is suffering from dementia, और इसमें हर साल 10 मिलियन ऐड हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं the extent of this illness. Mostly in every other home one person is suffering from dementia. It is a illness of elderly population, but we have seen कि इसमें कुछ 9% 10% लोग ऐसे भी हैं जिनमें कम उम्र में ये बीमारी शुरू हो जाती है, less than 65 years. सो मोस्टली मोर देन 65 ईयर्स पॉपुलेशन में होता है, बट कुछ परसेंट केसेस में लेस देन 65 ईयर्स में भी होने लगता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एजिंग एंड डिमेंशिया, बिकॉज कई बार हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं चीजों को, कि अगर हमारे घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी प्रकार का उनके बर्ताव में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमको जनरली लगता है कि अरे इनकी तो उम्र हो गई है, जाने दो, अभी हम कई बार सुनते हैं कि ये सठिया गए हैं, अभी इनका क्या कर सकते हैं, इनका तो बर्ताव ही ऐसा है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। So we become very hopeless, and rather than asking the question as of why this is happening, we generally tend to casually ignore it. So it's very important to understand. So normal aging में क्या होता है कि प्रोग्रेशन जो होता है वो इतना रैपिडली नहीं होता है जितना डिमेंशिया में होता है। डिमेंशिया बेसिकली इज अ न्यूरो डीजनरेटिव इलनेस, यानी कि न्यूरॉन्स जो हैं, जो हमारे अंदर की नसें हैं दिमाग की, वो सिकुड़ती है। इसके कई कारण होते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज जिसको बोलते हैं, या प्लाक्स होता है, कुछ जो इम्प्योरिटीज होती है ब्रेन में, उसकी वजह से न्यूरोनल डैमेज होता है, और उसकी वजह से हमारी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होती है। तो नॉर्मल एजिंग में फंक्शनैलिटी, हमारा रूटीन उतना डिस्टर्ब नहीं होगा जितना डिमेंशिया में होता है, और बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करता है। इसमें जैसे मैंने बोला, इट इज एसोसिएटेड विद फिजिकल चेंजेस ऑल्सो। बॉडी का वॉलेंट्री कंट्रोल कई बार कम हो जाता है। उसके अलावा कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। उसके अलावा हमारी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करता है। उसके अलावा जस्ट ये उस आदमी को, उस व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करता है, उसके अलावा उसके पूरे परिवार को अफेक्ट करता है, उस परिवार के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। बिकॉज समटाइम्स इवन फैमिली मेंबर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग, और इसको संभालना कैसे है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिमेंशिया। ओके, वंडरफुल। बट डॉक्टर, अगर हमारे फैमिली में से किसी को एक है डिमेंशिया, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ना कि मतलब कौन सी ओल्ड एज रिलेटेड चीजें हैं या फिर ये डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो वो कैसे हमें पता चलेगा? मतलब उसके पहले साइंस क्या रहेंगे? राइट। हाउ डू वी ऑब्जर्व? अगर मिडिल एज के जो लोग हैं, कि आपने बोला है कि देयर आर चांसेस कि 65 के पहले भी हो सकता है, तो वो क्या हम लोगों को वो सिम्टम्स देखने जरूरी है कि वो डिमेंशिया ना हो? यस यस यस। ओके, सो मैं आपको ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। मैं दो सिनेरियोज में आपको बताता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो इज व्हेन वी व्हाट वी सी इन आवर आउट पेशेंट सेटअप। जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो किस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि यूजुअली दीज पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड डिमेंशिया और माइल्ड टू मॉडरेट डिमेंशिया, बिकॉज दे आर यूजुअली फैमिली मेंबर्स आर एबल टू हैंडल देम एट होम, बट कुछ डिफिकल्टीज आती है। तो जो माइल्ड डिमेंशिया होता है उसमें जैसे कि फैमिली मेंबर्स यूजुअली ले करके आते हैं उनको। ये जनरली पेशेंट जो होते हैं अपने आप से चल करके नहीं आते हैं, फैमिली मेंबर्स ले करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके बर्ताव में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने बोला, मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम इज भूलने की तकलीफ। भूलने की तकलीफ में छोटी छोटी चीजें भूल जाना, कि जैसे किसी को पैसे दिए हैं तो कितने पैसे दिए हैं, कब दिए हैं, भूल जाना, या गैस का नॉब ऑन रखा है तो उसको ऑन रख के भूल जाना, चश्मा कहाँ रखा है ये भूल जाना। कभी कभी ट्रैक जो है वो लूज कर देते हैं, जैसे बाथरूम जाना है उनको तो गलती से वो किसी दूसरे रूम में चले जाते हैं। कई बार बात करते करते उनको ऐसा समझ नहीं आता है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, और वो ट्रैक लूज हो जाता है। तो कई बार परिवार वालों को लगता है कि ये हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये किस बारे में बात करने लग गए। तो ये चीजें, कई बार नाम याद रखने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। उनको समझ में आता है कि अरे ये तो मेरा रिलेटिव है, बट नाम याद करने में हो सकता है वो कुछ समय लगाएं, या नाम याद ना आ पाए, सिर्फ रिलेशन याद आ पाए कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है,
बट नाम याद करने में प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली चीजों का नाम याद रखने, अगर मैं उनको ये बोलूंगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो हो सकता है वो ये बोले कि डॉक्टर इससे हम लिखते हैं, but they might not be able to tell this is pen. Okay, so this is what we call as nominal aphasia. So ये छोटी छोटी चीजें जो है हमको, और रूटीन फॉलो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उन लोगों को। कई बार स्लीप चेंजेस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। स्लीप चेंजेस में सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है। पूरे दिन भर वो सोते हैं लेकिन रात को सो नहीं पाते हैं और काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार का सिनेरियो हमको यूजुअली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में या बाह्य रोग विभाग में हमको देखने को मिलता है। बट जब हम आईपीडी की बात करते हैं या हॉस्पिटल एडमिशंस की बात करते हैं तो सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जनरली इन पेशेंट सेटअप में जब एडमिशन होता है तो या तो वो मरीज काफी सीवियर डिमेंशिया से ग्रसित हुआ होता है या फिर उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, यू विल बी सरप्राइज कि इस तरह से भी डिमेंशिया प्रेजेंट कर सकता है, एंड फैमिली मेंबर्स आर यूजुअली नॉट अवेयर दैट दिस इज डिमेंशिया। ओके, सो अ फ्यू मंथ्स बैक ओनली अ 60-year-old मेल, एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी डॉटर और उनकी वाइफ लेकर के आई कि डॉक्टर साहब हमें समझ नहीं आ रहा है, पिछले कुछ महीने से ये पता नहीं अजीब सी हरकतें करते हैं और कोई लड़की होगी तो उनको स्टेयर करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, हमारी सोसाइटी में हमारा रहना मुश्किल हो गया है, लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं हमारे परिवार के बारे में। सो कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। Now, this basically was one of the symptom of dementia. Apart from the forgetfulness that he was having, he was also having loss of judgment. यानी हमारा जो फ्रंटल ब्रेन होता है, उनकी नसों में जब डैमेज होता है तो हमारा जज करने का जो प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि हम जो एक्ट कर रहे हैं वो सही एक्ट है या गलत एक्ट है, वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जनरली हमारे मन में भी बहुत सारी चीजें आती है जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा माइंड हमको बोलता है कि नो, दिस इज नॉट राइट एंड यू शुड नॉट डू दिस। ओके, सो दिस जजमेंट लॉस इज वन ऑफ द सिम्टम इन विच दिस काइंड ऑफ केस लाइक हाइपरसेक्सुअलिटी इट मे प्रेजेंट। सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक 69-year-old फीमेल को उनके सन ले करके आए थे। वो बोल रहे थे कि परिवार में अक्सर बहुत चिड़चिड़ापन उनको हो गया है। शी इज ऑलवेज अक्यूजिंग फैमिली मेंबर्स को हमेशा ब्लेम करती कि आप लोग मेरा ख्याल नहीं रखते हो, आप लोग मुझे समय पे खाना नहीं देते हो, आप लोग मेरा पैसा लूटने की कोशिश करते हो, मेरे जितनी भी जायदाद है वो आप लूटने की कोशिश करते हो, आप मेरे खाने में जहर मिलाते हो, तो आप मुझे मारने की साजिश करते हो। सो डिमेंशिया कैन प्रेजेंट इन सच अ कंडीशन व्हाट वी कॉल एज साइकोटिक सिम्टम्स। तो ऐसा एक भ्रम और ऐसा वहम उनको हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमिटर, रासायनिक बदलाव भी होता है न्यूरोनल चेंजेस के अलावा, और उस रासायनिक बदलाव की वजह से ये सारे चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। वन मोर एग्जाम्पल इज एक 73-year-old फीमेल को उनके बेटे लेकर के आए थे हमारे हॉस्पिटल में, एंड द मेन कंप्लेंट वाज दैट शी वाज नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस। यानी वो एक जगह बैठ ही नहीं पाते थे, वो कितना भी बिठाने की कोशिश करते हैं वो उठ जाते, या तो वो घर के बाहर निकल जाते हैं या वो इधर उधर रूम में चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो प्लग में उंगली डाल रहे हैं तो ग्रॉसली डिसओरिएंटेड, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एंड शी इज जस्ट पेसिंग अराउंड इन दी होम, और एक इमोशनली बहुत लबाइल हो गई। यानी उनको उनकी हंसी पे या उनके रोने पे कोई कंट्रोल नहीं रहा है। विदाउट एनी इमोशनल ट्रिगर वो ऑल ऑफ अ सडन रोने लग जाते हैं या ऑल ऑफ अ सडन हंसने लग जाते हैं। So this is also one of the example in which dementia may present. Okay, so this is again loss of emotional control, loss of judgment, loss of orientation because of neuronal damage. And I'll give you one last example, which is also interesting, that एक 64-year-old फीमेल हमारे पास आई थी। उनका मेजर कंप्लेंट ये था फैमिली मेंबर्स का कि इनको ऐसा लगता है कि इनका हस्बैंड जो है वो रिप्लेस हो गया किसी और आदमी से। I mean, it's a delusion. इट्स अ डिल्यूजन, ये एक भ्रम है कि वो जो है उनका हस्बैंड जो है उसको किसी और आदमी ने रिप्लेस कर दिया है और अभी वो घर पे कब्जा करना चाहता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिल्यूजन, एक भ्रम हो जाता है दिमाग में, और इस तरह से उनको लगता है कि द पर्सन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एन इम्पोस्टर, और इस तरह से भी प्रेजेंट, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस वेयर घर से बाहर निकल जाते हैं या कई दिनों तक आ नहीं पाते हैं, या कोई उनका डिस्टेंट रिलेटिव है या कोई नोन है जो उनको ले करके आता है। तो इस तरह से सारे सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं।
In fact, we also have one of the neighbors वो जो दादी जी हैं, तो she's almost like 91-year-old, but she thinks she's 40-year-old. और अभी उनकी जो डॉटर इन लॉ, उसको वो समझते हैं ये मेरी मदर इन लॉ है. Yes. So this is what we call as regression or regressive behavior, wherein they think कि मैं अभी बच्ची हो गई हूँ, मुझे अभी लॉलीपॉप चाहिए, मुझे कुछ अच्छा खाने को चाहिए. So ये affective features भी आने लगते हैं. So you are right कि इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं. But it's so difficult. मतलब हम जब उनकी जो स्टोरीज सुनते हैं कि कुछ ना कुछ चालू रहता है उनके घर पे, आज ये कर दिया, कल वो कर दिया. जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं. राइट. लेकिन छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो हमें इतना इरिटेशन नहीं होता. जब बड़े करते हैं तो it becomes so difficult for a family to handle that. It's a very difficult situation for the family members. It's very difficult. But इसमें मतलब कितना, what is the success rate कितना रहता है? मतलब ऐसे एज में do you think कुछ हो पाता है, मतलब after coming to the psychiatrist और ऐसे हम लोग? Unfortunately डिमेंशिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं, आई मीन क्योर नहीं है. सो मेजर जो हमारा ये रहता है, टारगेट रहता है, वो ये रहता है कि ऑप्टिमली मैनेज करें, उसमें जो बिहेवियरल चेंजेस है उनको कंट्रोल में लेकर के आए. उसके अलावा जो मेमोरी लॉस है उसके प्रोग्रेशन को हम स्लो डाउन कर पाए, अगर उनकी जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस है उनको कंट्रोल में ला पाए. उसके अलावा जो केयर है, आई मीन नर्सिंग केयर है, या उनका जो बावल ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो छूट गया है, उसका केयर हम कर पाए. थोड़ा जो इरिटेबिलिटी है या एग्रेशन है उसको हम कंट्रोल में ला पाए. ओरिएंटेशन को ग्रॉसली हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए. मेजर हमारा मोटो ये रहता है, जब भी मेरे पास रिलेटिव्स आते हैं विद द केस ऑफ डिमेंशिया, आई यूजुअली टेल देम इन डिटेल अबाउट डिमेंशिया बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है टू रिलीव देयर एंजाइटी, बिकॉज जब तक उनको मालूम नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इवन फॉर द अफेक्टेड पर्सन. They start blaming these elderly people then, you know, right. जबरदस्ती ऐसे पर्पसली कर रहे हैं हमें तंग करने. हाँ, ये नाटक करते हैं. So I think there has to be more awareness created about this disease, क्योंकि sympathy नहीं रहती है तभी वो पेशेंट के बारे में. अगर किसी को कैंसर होता है, immediately we feel so sympathetic, but this person is going through इतना, मतलब maybe they are not aware कि क्या चल रहा है उनके जिंदगी. See, it's not visible actually. There are few investigation in which we come to know that brain का shrinkage हो गया है या atrophy हो गया है brain का, but more or less कोई blood investigation ऐसा नहीं है जो ये बता पाए कि ये डिमेंशिया है. यूजुअली डायबिटीज, हाइपरटेंशन हम बता देते हैं ब्लड प्रेशर चेक करके, शुगर लेवल्स चेक करके. फ्रैक्चर होता है तो दिखता है कि फ्रैक्चर है हाथ में, एंड वी शो सिंपैथी टू द पर्सन, अफेक्टेड पर्सन. बट मेंटल इलनेस मोर और लेस ग्रॉसली हम देखें तो सभी मेंटल इलनेस में ये प्रॉब्लम है कि वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग. इट्स अ सोशल टैबू ना, अभी तक मेंटल इलनेस इज अ सोशल टैबू. राइट. मतलब पीपल मे सफर क्वाइटली बट they will not go and talk about it openly. Yes. So what are the stages in dementia? Are there any different stages in dementia? Yeah. So there is a very fine line sometimes, because क्या होता है ना कि symptoms काफी mixed रहते हैं. Okay, but grossly speaking stages को हम mild, moderate and severe dementia में categorize कर सकते हैं. तो mild dementia में जैसे मैंने बोला कि forgetfulness जो है वो majorly रहता है, छोटी छोटी चीजें भूल जाना, टाइम का ट्रैक लूज कर देना. जैसे उनको मालूम होता है कि अभी रात है, लेकिन अगर हम पूछेंगे कि अप्रोक्सीमेटली क्या टाइम हुआ है, तो जनरली कई बार वो बता नहीं पाते हैं, 2-3 घंटा आगे पीछे हो जाता है. उसके अलावा जैसे अगर हम पूछेंगे कि आपने खाना खाया क्या, तो बोलेंगे यस आई हैव टेकन द फूड, जेवण घेतलंय मी. तर काय घेतलंय जेवणामध्ये, तो दे विल एंड अप टेलिंग की नहीं मैंने सब्जी रोटी खाया है, दाल भात खाली है. पर सब्जी रोटी मतलब सब्जी क्या खाया है, तो दे विल नॉट बी एबल टू टेल क्या, या फिर उसको वो फॉल्सिफाई कर लेंगे या कुछ और आंसर दे देंगे, अरे बटाटा की सब्जी खाली होती. तो थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है. कई बार मैं ये भी पूछ लेता हूँ, अरे आपको याद है कि मैं कल आपसे मिलने आया था और मैं आपके यहाँ घर पे मिठाई का डिब्बा लेकर के आया था. तो दे विल एंड अप सेइंग, बिकॉज दे डोंट रिकॉल कि कल क्या हुआ था, तो दे विल अल्टीमेटली यस डॉक्टर आप आए थे, मैं मिला था आपसे, एंड मेरे को अच्छे से मालूम है आपने क्या मिठाई लाई थी वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप मिठाई लेकर के आए थे. सो दिस इज हाउ वी कंफर्म दिस थिंग. नाउ इन मॉडरेट सिवियरिटी क्या होता है ना कि ये जो फॉरगेटफुलनेस है और थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत रूटीन में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है.
उसके अलावा वो फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, जैसे मैंने बताया कि ये बेटा तो है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है, ते ओळखीचा वाटते मला, मेरे रिलेटिव हैं लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। कम्युनिकेशन में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि वो टॉपिक पे रह नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता है किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कुछ कुछ वर्ड्स वो पिकअप नहीं कर पाते हैं या कुछ कुछ वर्ड्स वो जज नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात नहीं कर पाते हैं, मोर और लेस थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ग्रॉसली ओरिएंटेड रहते हैं। उसके अलावा उनको डिफिकल्ट टास्क, कॉम्प्लिकेटेड टास्क होती है, उसमें कई बार असिस्टेंस लगता है कि अगर हम बोलेंगे कि आप ये 2 सामान वहां पे रख करके आओ और वहां से एक सामान ले करके आओ, तो दिस बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो इसमें हो सकता है वो, हो सकता है सामान तो रखने जाए लेकिन वापस कुछ ले करके ना आए, तो ये चीजें उनके साथ में होने लगती है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बिहेवियरल चेंजेस आर वेरी प्रोमिनेंट, बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, एग्रेशन बढ़ जाता है कई बार, हाइपर सेक्सुअलिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, वो दिन रात भर सो नहीं पाते हैं, हो सकता है दिन भर वो सो जाएं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो दिस इज हाउ अ मॉडरेट डिमेंशिया विल प्रेजेंट, एंड इन सीवियर केसेस इट्स अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन बिकॉज ग्रॉसली डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि आज कौन सा दिन है, ये दिन है या रात है, क्या टाइम हुआ है, मैं कहाँ पर हूँ, इस प्रकार से डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में भी उनको असिस्टेंस लगता है, ये कोई सामान लेकर के भी आना है तो उसमें भी उनको असिस्टेंस लगेगा। फिजिकल मूवमेंट पे जो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा लैक करता है। उसके अलावा उनके बाउल एंड ब्लैडर पे उनका कंट्रोल छूट जाता है, वो बिस्तर पे पेशाब संडास कर देते हैं, तो उनका नर्सिंग केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यूजुअली लेटेस्ट स्टेजेस में जैसे मैंने बताया कि फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो चल नहीं पाते हैं, जनरली बेड रिडन हो जाते हैं, और बेड रिडन होने के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको झेलने पड़ते हैं, जैसे बेड सोर्स है, निमोनिया है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सारी चीजें, एंड यूजुअली लेट स्टेजेस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, because most of, especially in the metro cities where everybody is working and everybody has a responsibility to take, तो कई बार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उनकी जजमेंट चली जाती है। एक लीगल इशू है जो काफी दिक्कत देता है कि उनकी जजमेंट जब जाती है तो वो डॉक्यूमेंट्स पे हो सकता है वो वेरीफाई ना कर पाए, विल ना बना पाए अपनी, या कोई बैंक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना है तो वो पॉसिबल ना हो पाए। तो ऐसे समय में हमको उनको फिटनेस चेक करना पड़ता है हमको कि वाकई में वो उस लायक है या नहीं है, और कई बार हमको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि he or she will not be able to do this and you will have to probably see some other alternative for this. But what about violent? Because there are certain cases वहाँ पे violent भी हो जाते हैं ये patients, या Yes, फिर yes, यहाँ पे yes. is it part of dementia और या वो schizophrenic वगैरह? नहीं, see there are two three things, जैसे लेट ऑनसेट साइकोसिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें मेजरली साइकोटिक सिम्टम, एग्रेशन, सस्पिशियसनेस, डिल्यूजन, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, हेल्यूसिनेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, बट उसमें मोर और लेस डिसओरिएंटेशन या फिर हम बोलेंगे फॉरगेटफुलनेस या ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव इलनेस, ये सारी चीजें हमको देखने को नहीं मिलती है कई बार। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी कि whether this is psychosis. I've seen some cases in hospital setup being treated as psychosis, but they were actually cases of dementia, because कई बार हॉस्पिटल सेटअप में उतना डिटेल इंक्वायरी पॉसिबल नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू काम डाउन द पर्सन। देखिए, सस्पिशियसनेस जब होता है, जब इंसान को लगता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा या कोई मुझे जान से मार देगा, तो ऐसे समय में अपने आप को डिफेंड करने के लिए पर्सन बिकम्स एग्रेसिव। So it is not that they are doing it deliberately, they are doing out of their defense. Okay, so ये हमको चीजें ध्यान रखना, अगर हम calmly handle करते हैं इन चीजों को, तो it is much more easy than what we think. Okay, so we have heard Alzheimer's dementia, but what are the any other significant forms that we should be aware of? Yes, definitely. So Alzheimer's is the most common form of dementia. It constitutes around 60% of the part of dementia. But there are other important dementia, especially vascular dementia, जिसमें वेस्कुलर यानी कि ब्रेन में रक्त स्त्राव का प्रॉब्लम या ब्लड फ्लो का, सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, एंड दिस कंस्टिट्यूट्स अराउंड 10 to 15%. बट लार्जली व्हेन वी लुक एट द क्लिनिकल एस्पेक्ट, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि 70-80% टाइम्स ये मिक्स फॉर्म होता है, यानी अल्जाइमर भी होता है उसमें, और उसमें वेस्कुलर डिमेंशिया भी होता है या ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम भी होता है।
बट वेस्कुलर डिमेंशिया की एक पिक्युलरिटी ये है कि इट प्रोग्रेसेस, जो एल्जाइमर्स है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है ना लीनियर फैशन, बट वेस्कुलर डिमेंशिया क्या होता है, इट प्रोग्रेसेस इन स्टेप लेडर पैटर्न। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं उस प्रकार से एक वेस्कुलर इवेंट होगा तो वो पेशेंट जो है डिटेरिएट हो जाता है, फिर अनदर वेस्कुलर इवेंट हैपेंस एंड द पेशेंट डिटेरिएट्स फर्दर, सो ग्रेजुअली वो डिटेरिएशन बढ़ता जाता है। ओके, सो सम मोस्टली ये जो है मिक्स फॉर्म हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा दिस वन अनदर इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ डिमेंशिया व्हाट वी कॉल एज लुई बॉडी डिमेंशिया, जिसमें ब्रेन में कुछ बॉडीज है, प्रोटीन बॉडीज हैं, वो डेवलप हो जाने के कारण ये डिमेंशिया होता है, और इसमें हमको मेजरली बिहेवियरल एस्पेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, और स्पेसिफिकली विजुअल हेल्यूसिनेशन, यानी कि उनको ऐसी चीजें दिखाई देनी देती है, लगती है जो वाकई में होती नहीं है। उनको कोई आदमी आता हुआ दिखाई देता है, उनको ऐसा लगता है कि पंखा मेरे ऊपर गिर जाएगा, ये दीवार मेरे ऊपर गिर जाएगी। तो इस प्रकार से उनको हेल्यूसिनेशन होता है, ऑडिटरी एंड विजुअल, यानी सुनाई देना ऐसी चीजें जो वाकई में नहीं है। तो हमको ये बहुत अवेयर रहना पड़ता है कि ये फॉरगेटफुलनेस पहले स्टार्ट हुई है, इस प्रकार के हेल्यूसिनेशन पहले स्टार्ट हुए हैं, या कितना प्रोमिनेंट है ये सारी चीजें, और उसके अकॉर्डिंग हमको इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है। थर्ड मेजर है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, जिसमें फ्रंटल ब्रेन and temporal region. Now, frontal brain is basically responsible for your judgment, your cognition, your ability to think and judge things and make decisions. और टेम्पोरल जो है वो हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जब ये मेजर एरियाज अफेक्ट होती है तो इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं रादर देन फॉरगेटफुलनेस। तो कई बार हमको लगता है कि नहीं नहीं ये भूल तो नहीं रहे, लेकिन इनकी बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया है। उसके अलावा पोस्ट स्ट्रोक, यानी जो पैरालिसिस का अटैक आता है या एक्यूट इन्फार्क्ट होता है, उसके कंडीशन में माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिमेंशिया वी में सी। उसके अलावा सब्सटेंस इंड्यूस, मेजरली अल्कोहल इंड्यूस इज वेरी प्रोमिनेंट, अल्कोहल इंड्यूस मेजर न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हम इसको बोलते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। सो अगेन उसमें भी न्यूरोनल लॉस होता है बिकॉज ऑफ इंजरी। उसके अलावा क्रोनिक ट्रोमैटिक, यानी कि बहुत ज्यादा चोट लगती है, जैसे बॉक्सिंग का प्रोफेशन है उसमें बहुत ज्यादा रेगुलर चोट लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कंट्यूजन्स, ब्रेन कंकशंस के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे में उनको डिमेंशिया होने का चांस ज्यादा रहता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखनी है कि ये रिवर्सिबल भी होता है, कुछ वेरी माइनर प्रिवेलेंस इज ऑफ रिवर्सिबल डिमेंशिया, जिसमें हमारी थायराइड प्रॉब्लम्स, हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली, जब थायराइड लेवल्स कम हो जाते हैं तो हमारा अटेंशन, फोकस एंड मेमोरी काफी हद तक अफेक्ट करता है। और इसको हम अगर अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं तो हम अच्छे से इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। और अदर विटामिन डेफिशिएंसीज आर आल्सो देयर, लाइक विटामिन B12, विटामिन डी, ऐसी कंडीशंस में भी हमको डिमेंशिया देखने को मिलता है। सो दीज आर मोर और लेस ग्रॉसली आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशिया। नहीं, जब भी ये मैंने डिमेंशिया के बारे में व्हेन आई हैड शेयर्ड द पोस्टर, तभी बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि लगता है हमें यंग एज में ही डिमेंशिया हो गया है करके। हाँ हाँ हाँ। Is it too much of exposure to the screen No, and no, no, no. See, I will tell you, the person who tells that he or she is having dementia is majorly not having dementia. ओके ये क्यों होता है? यंग एज में जनरली हम देखते हैं कि हमारे पास ओपीडी में स्पेशली हाउस वाइफ कि सर मैं अभी मतलब गैस मैंने चलाया और मैं भूल गई, चाय रख के भूल गई, मैं दूध रख के भूल गई, और ये अक्सर होता है मेरे साथ में। सो व्हेन यू टेक डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड हिस्ट्री, विल कम टू नो कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। दे आर ऑलवेज एंग्शियस अबाउट समथिंग, दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। और ऐसे में क्या होता है कि उनका अटेंशन काफी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब अटेंशन डिस्टर्ब होता है, आपने दरवाजा बंद कर दिया है मेमोरी का। अटेंशन इज द डोर टू मेमोरी। अगर आप दरवाजा बंद कर देंगे तो चीजें रजिस्टर नहीं होगी, और वो अंदर नहीं है हो गई तो रिकॉल कैसे होगी? सो दिस इज मेजर प्रॉब्लम। सो यंग अडल्ट अगर आपके पास आते हैं कि मुझे डिमेंशिया हो गया है शायद बिकॉज आई एम हैविंग फॉरगेटफुलनेस, इट इज मेजरली लॉस ऑफ अटेंशन, एंड यूजुअली दे गेट ट्रीटेड विद एंटी एंजाइटी मेडिसिन एंड एंटी डिप्रेशन। सो उससे उनको काफी रिलीफ मिल जाता है। Okay, so I think if our audience is listening to this, so it's a really they will feel good कि अच्छा ये dementia नहीं है. There are too many things happening in their mind, so that's Right. how we forget many things. Right, right. So, doctor, is there any? I mean, is it required that every case अगर हमें ऐसा समझ में आता है तो immediately should we go to the psychiatrist, या कुछ cases it can be like घर पे ही हम लोग कुछ treat वगैरह कर सकते हैं? नहीं। See, it's a progressive illness, and when we say it's a illness, हम कोई भी बीमारी में डॉक्टर को दिखाते ही हैं।
बिकॉज ये प्रोग्रेशन कितना रैपिड होगा वी डोंट नो। अगर हमारे हाथ में अभी चीजें हैं और हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया है तो बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहती है। बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस होने से बचा सकते हैं। उनके जो स्लीप डिस्टर्बेंसेज है उनको बचा सकते हैं। उसके अलावा प्रोग्रेशन को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अगर अर्ली आप डिटेक्ट कर लेते हैं, आपको ऐसा अंदाजा लगता है, तो उनको जल्द से जल्द इधर साइकाट्रिस्ट, इधर अ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, यू शुड टेक द पर्सन टू फॉर द ट्रीटमेंट। बिकॉज अगर ट्रीटमेंट के लिए लेकर के नहीं जाएंगे तो बाद में बहुत ज्यादा वर्सन होने पे अगर हम लेकर के जाते हैं तो उतना इफेक्टिवली हम लोग ट्रीटमेंट, हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है उसमें फेल हो जाते हैं या वो उतने इफेक्टिवली वर्क नहीं करते हैं। पर डॉक्टर अभी भी मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी मतलब मान्यता ऐसे है कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उनकी जो दवाई है, बिकॉज एलोपैथी स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एलोपैथी, सो देयर आर मेनी पीपल हु डोंट गो टू द एलोपैथिक डॉक्टर्स सेइंग दैट इसके साइड इफेक्ट्स है। तो डेफिनेटली देयर आर साइड इफेक्ट्स। कोई भी दवा, आई गेस दुनिया में तो कोई भी ऐसी दवा नहीं होगी जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। ओके, तो जब हम साइड इफेक्ट्स को देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उस दवा का इफेक्ट कितना है। तो हमको कहीं ना कहीं उसको वे करना पड़ता है कि इफेक्ट और साइड इफेक्ट में से हमको कौन ज्यादा मतलब लाभ दे रहा है और हमको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या नहीं। ये ऑलवेज इट इज इन द हैंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स। और जब हम डिटेल में समझते हैं दवा कैसे काम करती है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, और इफेक्ट किस तरह से साइड इफेक्ट्स को ओवर पावर कर जाते हैं, और लॉन्ग रन में कैसे मेडिसिन उनको हेल्प करेगी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। हालांकि मेडिसिन जो है वो लंबे समय तक चलती है डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी, आई मीन इट शुड बी डन। right, so what is your take on alternative medicines? I am always open to opinions, various opinions, but because I am from modern medicine, I usually don't comment on the effects and side effects of other, alternative medicine. But I usually say them that if you believe that this is helping you and it is not causing any trouble, and if you are comfortable with this, you can go ahead with alternative medicines also. But usually, I don't comment on the effects and side effects. But if I were to start my medicine, I usually tell them that stop all other medicine so that I can know what effects of my medicine is being there, and we can judge actually the effects and side effects particularly. So what is the right age that we should start taking precautions, and what kind of precautions, so that we don't get into this dementia? But of course, I don't think there will be any hard and fast, like some kind of rule or कि ऐसा किया तो आपको 100% dementia नहीं होगा. Yeah. So there is no right age. From the moment you start understanding that your body is important, you have to take steps to prevent any kind of mental illness and physical illness as well. So सबसे पहले तो आपको आप उम्र को रोकना पड़ेगा. You will have to stop aging, which is not in our hand, because age is like an inevitable risk factor. बट वी हैव सीन, जैसे मैंने आपको बोला है कि अर्ली डिमेंशिया भी हमने देखा है, और ऐसा नहीं है कि जब उम्र हो जाती तो 100% लोगों को डिमेंशिया होता है. इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या कुछ चीज हमको हेल्प कर सकती है. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज. आई मीन फिजिकली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस लेवल्स ऑल्सो, it improves our mood, it reduces the oxidative stress in the brain जो डैमेज करता है हमारे न्यूरॉन्स को, in the form of योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स. मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि आप 15 मिनट चल लीजिए सुबह सुबह. सिर्फ चलना जरूरी है. आई मीन इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग टू वर्क, आप सब्जी मंडी जा रहे हैं और उसको गिना रहे हैं कि नहीं सर मैंने तो एक्सरसाइज कर लिया बिकॉज मैं तो 15 मिनट सब्जी मंडी जा करके. तो अपने लिए करें वो एक्सरसाइज. उसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा जितना कंट्रोल में रहेगा, डाइट जितना हेल्दी रहेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ईट हेल्दी सैलेड्स, फ्रूट्स आप ज्यादा से ज्यादा खाएं. ऐसे पदार्थ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी होती है, उससे स्ट्रेस लेवल्स भी कंट्रोल में रहता है, और उसके अलावा जो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं वो भी कम रहते हैं. उसके अलावा सब्सटेंस यूज, लाइक आई मेंशन्ड अल्कोहल. अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं, क्या होता है ना कि कोई भी जानबूझ करके कोई सब्सटेंस में नहीं जाता है. यूजुअली वर्क स्ट्रेस होता है कुछ लोगों को फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है,
तो ऐसे में अगर उनको नींद अच्छे से नहीं आती है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, दिमाग में थॉट चल रहे हैं, सो रादर देन गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट और टेकिंग अ थेरेपी सेशन, दे यूजुअली एंड अप कंज्यूमिंग अल्कोहल. उससे उनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है, बट ओवर अ लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू मेक देम डिपेंडेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ देम हैविंग द डिमेंशिया. तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारी जो कोपिंग स्किल है या हमारी जो तनाव को झेलने की क्षमता है, या जैसे हम उस तनाव को लेते हैं, वो हमें थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा. उसके अलावा जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्कुलर डिमेंशिया है, तो उसमें वेस्कुलर इवेंट्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. आपके ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में रखें. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सर मुझे तो ब्लड प्रेशर नहीं है, एंड व्हेन आई चेक देम इन दी ओपीडी दे यूजुअली एंड अप हैविंग हाई ब्लड प्रेशर. तो मैं बोला कि आप तो ये बोल रहे थे कि मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है. नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने कभी चेक ही नहीं करवाया. सो दिस इज हाउ थिंग्स कम. कई बार ऐसा होता है कि सर मुझे शुगर वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एंड व्हेन आई आस्क व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड योर ब्लड शुगर लेवल, ही सेड कि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. So you have to work on these illnesses also, because these are slow poison and this increases your likelihood to have dementia. Also improving your mental health, how you tackle stress, your coping skill, increase your cognitive reserve. Now this is something which has come into limelight the recent past few years only, कि कॉग्निटिव रिजर्व मतलब हमने देखा है कि कुछ लोग हैं जिनके एमआरआई में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, जिनका ब्रेन बहुत एट्रोफी हो चुका है, लेकिन वो लोग फंक्शनली अच्छे हैं, वो लोग सब कुछ कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि कुछ न्यूरॉन्स उनके ऐसे हैं जो बाकी के न्यूरॉन्स का काम कर सकते हैं. वो ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट फ्यू इयर्स उन्होंने वो चीज डेवलप करी है. जब हम कुछ भी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, ब्रेन रिलेटेड गेम्स खेलते हैं, तो मैं आई एम मेंशनिंग दैट इट शुड नॉट बी एडिक्टिव. तो वो एडिक्टिव गेमिंग से आपको बचना है, बट इस प्रकार की कॉग्निटिव एक्सरसाइज को आपको करना शुरू करना पड़ेगा, so that your mind is active, your cognition is active, and your neurons are active all the time. Okay, so this is what we call as improving your cognitive reserve. उसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट, हम सांस अच्छी ले रहे हैं, यानी अभी पोल्यूशन इतना है, टॉक्सिन लेवल इतना है, तो हमको कुछ ना कुछ उसके बारे में भी फॉर फ्यूचर जनरेशन भी हमको सोचना पड़ेगा ऑन प्रिवेंटिव लेवल. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू ऑन प्रिवेंटिव लेवल. थैंक यू सो मच डॉक्टर. अगर हमारे फैमिली में कोई डिमेंशिया के पेशेंट है तो हम उनकी केयर कैसे ले और खुद की केयर कैसे ले? यस, खुद की केयर लेना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप खुद की केयर नहीं ले पाते हैं तो आप दूसरों की केयर नहीं ले पाते हैं. इफ यू आर नॉट फिट मेंटली देन यू आर लाइकली टू गेट इरिटेटेड ऑन द पीपल. तो उनको उनके हर बर्ताव पे आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आप उनकी बात सुन नहीं पाएंगे. सबसे पहले आप जानने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और ये प्रॉब्लम क्या है. क्योंकि द मोमेंट यू रियलाइज दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस, आपके जो उसको देखने का नजरिया है, आपका पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इमोशनली हैंडल कर पाएंगे उसके बर्ताव को. सेकंड इज लिसन टू देम, टॉक टू देम. वो बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट बोलेंगे, उनका उसका कोई मकसद नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो बोलेंगे, बट आप सुने, बिकॉज इट श्योरली रिड्यूसेस देयर रेस्टलेसनेस, उनकी एंजाइटी को कम करता है, आप पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है उनका. उसके अलावा उनकी फिजिकल एक्टिविटी को आपको प्रमोट करना है, गिव देम अ हेल्पिंग हैंड. अगर वो बेड पे ही बैठे रहते हैं तो उनको बोलें कि चले आप मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ें, थोड़ा सा हम मूवमेंट करते हैं घर के चारों तरफ. सो ये बहुत जरूरी है टू डिले द प्रोग्रेशन, क्योंकि फिजिकली अगर बेड रिडन हो जाएंगे तो ये प्रोग्रेशन बहुत रैपिड होता है और मसल कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होता है, एंड बेड रिडन पेशेंट्स को संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू द पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. उसके अलावा आप उनको गाइड करें कि, क्योंकि वो जनरली भूल जाते हैं बाथरूम किधर है, रूम किधर है, हॉल किधर. तो यूजुअली अगर आपका घर बड़ा है या कंफ्यूज हो जाते हैं वो, तो उन्हें गाइड करें थ्रू डायरेक्शंस. आप एरोज लगा सकते हैं कि बाथरूम इस तरफ है. ओके, तो इस तरह से डोर जो है उसमें कॉम्प्लिकेटेड लॉक ना रख के बहुत सिंपल लॉक आप रख सकते हैं ताकि उनको खोलने में आसानी रहे डोर को. उसके अलावा आप उनके जो सेंसरी डेफिसिट्स है, क्योंकि ये उम्र के साथ में चलने वाली बीमारी है, तो हम देखते हैं कि इसमें कैटरेक्ट का प्रॉब्लम होता है, हियरिंग डिफिकल्टीज होती है. तो ये सारी चीज़ों को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो आप चश्मा उन्हें लगवाएं, या सुनने में प्रॉब्लम है तो हियरिंग एड लगवाएं. इससे उनकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती है और वो अच्छे से सुन पाते हैं, देख पाते हैं.
तो काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाती है। उसके अलावा जहाँ आप उन्हें रखते हैं उस रूम को आप वेंटिलेटेड रखें, लेट द लाइट कम इन, बिकॉज अगर लाइट नहीं आएगा तो मोस्टली वो डिसओरिएंटेड रहेंगे। हमें भी कई बार होता है कि हम शाम में सो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, बिकॉज वो अंधेरा और आइसोलेशन विल मेक इट मोर वर्स। तो वेंटिलेशन रखें, लाइट अच्छे से आने दें। घर में या उनके रूम में बड़ा कैलेंडर या बड़ा क्लॉक लगा के रखें, उन्हें ओरिएंट करते रहें कि देखिए अभी हम ये महीना शुरू है, बाहर बारिश हो रही है, देखिए अभी सूरज उगा है, अभी 5 बज गया है। उनका रीओरिएंटेशन अगर करते रहेंगे तो दे विल बी मोर कंफर्टेबल। उसके अलावा उनके कपड़ों के वजन को कम से कम रखें। बहुत ही लाइट वेट जो कपड़े होते हैं, जैसे लेडीज में हम बोलते हैं कि गाउन पहने सिंपल आप, सो दैट दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। उसके अलावा जेंट्स में हम बोलते हैं कि आप शर्ट वगैरह, बिकॉज बटनिंग एंड अनबटनिंग इज वेरी डिफिकल्ट, समटाइम दे गेट कंफ्यूज, समटाइम उनको चलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि आप कुर्ता पहने, लुंगी पहने, इट्स वेरी इजी टू वेयर ऑल्सो, एंड वो आपको आसानी भी होगी। इसके अलावा अगर ऐसी टेंडेंसीज है कि वो घर से बाहर निकल जाते हैं या भूल जाते हैं घर का रास्ता, हमेशा ये बात ध्यान रखें कि उनके पास में एक आईडी होना बहुत जरूरी है। अ सिंपल चिट ब्लॉक इन विच यू हैव जस्ट रिटन योर नेम, योर एड्रेस, योर नंबर, सो दैट अगर कोई उनको देखता है, कोई उनको मिलता है, वो भटक जाते हैं रास्ता, तो हो सकता है वो जेब में जो पर्ची रखी हुई है वो काम आ जाए और वो पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट कर पाए। मैं कई बार फैमिली मेंबर्स को ये भी बोल सकता हूँ कि आप अपने लोकल जो कम्युनिटी है, वहाँ पर जो पुलिस चौकी है, जो छोटा पुलिस थाना है, वहाँ पे जाकर के आप बता दें कि हमारे घर में इस तरह के बुजुर्ग हैं और ये कई बार अक्सर रास्ता भूल जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारी एब्सेंस में अगर ऐसा हो तो आप लोग प्लीज ध्यान रखें इस चीज का। आप अपने रिलेटिव्स या नेबर्स को भी बता सकते हैं कि इस तरह का इनका प्रॉब्लम है, तो ताकि वो ध्यान रखेंगे कि अब कभी वो घर से बाहर निकल रहे हैं अनजाने में तो वो लोग ले करके आ पाए। And most important is that don't shout at them. ओके, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि हम एज ए ह्यूमन हमारे इमोशंस आ जाते हैं बाहर, हमको कई बार लगता है कि हम असहाय हो गए हैं, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में हम चिल्ला देते हैं, बट दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो यू शुड बी वेरी विजिलेंट विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। एंड मोस्टली मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली है कि आप कैसे घर पे, बिकॉज इसके बियॉन्ड अगर चीज़ें जाती है तो यूजुअली यू हैव टू पुट देम इन अ सेटअप वेयर दे कैन बी टेकन केयर ऑफ। खास करके जब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तो yeah, so this is how we should be taking care. What is the role of these care centers? Yes, so see, these care center basically it requires a lot of effort to deal with such patients, especially late stage of dementia, जहाँ पे उनको हैंडल करना बहुत, जैसे मैंने बताया कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं। उसके अलावा मोस्टली हम मेट्रो सिटीज में देखते हैं कि जैसे फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग, अभी घर पे कोई भी नहीं है संभालने वाला, एंड दे यूजुअली रिक्वायर 24 आवर सुपरविजन, या समझो उनको दवा देना है, उनका डायपर चेंज करना है, तो या तो आप केयर टेकर घर पे रखते हैं या कई बार केयर सेंटर्स पे लेकर के जाते हैं। तो सीवियर डिमेंशिया स्पेशली विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इसमें इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा आप जब कोई फेवरेबल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कई बार होता है कि कई लोग करना तो चाहते हैं बट वो बोलते हैं कि सर हमारे घर में इतना स्पेस नहीं है या हमारे घर में इतना कंडीशन नहीं कि हम एक प्राइवेट केयर टेकर को रख पाएँ, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली। तो ऐसे कंडीशन में भी वो लेकर के आते हैं। उसके अलावा जिनको जैसे मैं बोला कि नर्सिंग केयर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली लगता है, जो कम्प्लीटली बेड रिडन है, उनको उठना बैठना चलना फिरना कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो उनमें उनका अगर यूरिन किया है तो वो साफ करना कई बार घर वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उन्होंने डायपर चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। ये सारी चीज़ें हैं। और बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसे इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा हो जाना, चीज़ें इधर उधर फेंक देना या हाथ उठाना, कई बार कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, तो उस कंडीशन में जो केयर सेंटर्स हैं इनका रोल बढ़ जाता है। डॉक्टर, आपके केयर सेंटर के बारे में भी बताइए ना, ताकि Yeah, so I am currently working in a setup by the name of Anand One Wellness Center. It's in Nala Sopara. तो यहाँ हम यूजुअली इट्स अ डिमेंशिया केयर सेंटर, जहाँ पे हम जैसे मैंने बताया कि जो सीवियर डिमेंशिया के पेशेंट हैं, जो टर्मिनली इल हैं या बेड रिडन हैं, उनको जो घर पे नहीं रख पाते हैं, ऐसे लोगों को हम वहाँ पर 24 आवर अंडर सुपरविजन, अंडर मेडिकल केयर, अंडर नर्सिंग केयर, अंडर साइकोलॉजिस्ट,
जो कि बात कर पाए उनसे, कुछ एक्टिविटीज में उनको एंगेज कर पाए, उनका मूवमेंट करवा पाए विद फिजियोथेरेपी एंड एवरीथिंग. सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर इन वी कैन प्रोवाइड अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट मोडालिटी, ताकि उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनकी बेहतर हो पाए, स्पेशली इन दी एंड स्टेजेस जहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली उनके साथ क्या हो रहा है. एंड it's very difficult for them also, but they are not in a state to understand these things. So this is what we are doing at our center. Yeah. So, but then, doctor, how affordable these kind of centers or these kind of setups? See, usually it varies from facility to facility. Sometimes, there are not a lot of centers, Right. especially for dementia. There are a few daycare centers also wherein they keep the patients for daytime. उनको जब तक घर वाले बाहर हैं तो डे टाइम में उनको छोड़ करके जा सकते हैं और वहां से उनको वापस से इवनिंग में पिकअप कर सकते हैं. तो इस तरह के डे केयर सेंटर्स भी हैं. अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो मोस्टली many of the people are not able to afford because उनका रहना खाना, हम किस तरह की फैसिलिटी उनको देते हैं, whether we are keeping them in dormitory, whether we are keeping in a single room or twin sharing room, तो इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक इश्यूज, बहुत सारे डायपर्स का खर्चा, उनके मेडिसिन का खर्चा, इस तरह का खर्चा आता है. बट मोर और लेस इट इज लाइक people can afford, but sometimes they have, they ask for the discounts also, but we usually provide that also in some cases if they are financially struggling. So wonderful work you are doing, doctor. Thank you It's so much. really amazing, because it's very difficult to handle one patient at home, and you people are handling so many patients at your center. So great work. Keep up your great work. And Thank you so much. it was really wonderful having you over here. I'm sure there will be a lot of questions from the audience also. Sure. Let's open this forum for audience. So Sure. before that, doctor, I would also like to share about Parisar Asha. Yes. So we are running this mental health helpline, पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, जहाँ पे हम लोग हर किस्म के जो इश्यूज है रिलेटेड टू योर, आपके जो मानसिक जो इश्यूज रहते हैं वो सारे हम लोग हैंडल करते हैं. वी हैव अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, एंड इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. वी हैव अ हेल्पलाइन, टोल फ्री हेल्पलाइन, जो मंडे से संडे तक ये खुली रहती है. सो श्री, कैन यू प्लीज शेयर दैट हेल्पलाइन नंबर? So if anybody requires any time, any help, feel free to contact us on this helpline number. It's toll free. And with the great support of Capgemini, we could make this completely free of cost service. Because abhi bhi there is lot of, like mental health के बारे में उदासीनता ही है हमारे society में. So we have to start taking care of our mental health so that we can have a happy family and a happy society. Sure. It's a great service to the society, and as a psychiatrist, I am open to this kind of service also. So if there's anything that I can do for Parisar Asha, please let me know. Thank you so much, doctor. Definitely, we will be in touch with you. Yes. Yeah. So now the forum is open for audience. आपके पास अगर कोई questions है डॉक्टर को पूछने हैं, so feel free. Actually, you can just make them, they can unmute themselves and you can talk to the doctor. Yeah, any questions? Hello. Hello. Yes. Yeah, I'm Ghazala Sayyed. Yes, ma'am. Can I ask one question? Yeah, sure, ma'am. Yeah, doctor, it was a eye-opener actually, first I will say, for all of us. And the question that I want to ask is, now since we are in the teaching profession, and we have early morning school, so right from 20 years or 25 years, we are used to of getting up early and then going to school. So 4:30, I think so, all the ladies, they get up. So now this has become a habit that when we are at home also, Saturday hai, Sunday hai, right, then also we get up. And then sometimes we feel that no, fridge mein se ye nikal ke rakhna hai, wo nikal ke rakhna hai. 2:30 also we get up. So is it a illness or it is a habit formation? Okay. It's basically a habit formation or a sense of responsibility that you always carry on your shoulders. Okay, it's a wonderful thing that most of the housewives are carrying this kind of responsibility, that even on Sundays and Saturdays they're not able to enjoy their weekends. Usually कुछ ना कुछ उनके सर में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है
basically you have to share this responsibility to with someone. If you want to feel relaxed on Saturday Sunday, probably you can share it with your children, you can share it with your partner कि आप जरा आज एक दिन के लिए देख लीजिए, आज मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ. एंड आई एम होपफुल that the family members and the partner will be understanding this. And this is not illness per se. अगर आदत है तो वो चीजें हैबिचुअल, हमारा एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ब्रेन में, जिसको जैसे मैंने बताया सर्कैडियन रिदम, कि अगर हम डेली एक ही टाइम पे उठते हैं, एक ही टाइम पे सोते हैं, तो वो एक आदत बन जाती है, और हमको पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्टिकुलर काम करना है तो वो भी एक हैबिचुएशन हो जाता है. बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि इफ दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल टू यू, अगर आप चाहते हैं भूलना, आप चाहते हैं रिलैक्स होना, लेकिन आपके दिमाग से वो थॉट जाता ही नहीं है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जाता ही नहीं है, और आप हमेशा एंग्शियस महसूस करते हैं एंटिसिपेशन में कि मुझे ये काम करना है, इसलिए मैं अभी सोऊंगी नहीं या मैं रिलैक्स नहीं हो पाऊंगी. तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके रूटीन को ट्रबल करती है, और उसमें आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये कहीं एंग्जाइटी के इश्यूज तो नहीं है, या माइल्ड एंग्जाइटी तो नहीं है, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं. तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स रिलैक्स होने के लिए. सोते वक्त ब्रीदिंग टेक्निक्स है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, और प्रोबेबली काउंसलर से बात करके अपने थॉट्स को वेंट आउट करना बहुत जरूरी है. स्पेशली इन इंडियन सिनेरियो, हाउसवाइफ वेंट आउट नहीं कर पाती बिकॉज कोई होता नहीं है कि जिसके साथ में हम वेंट आउट कर पाए. तो अपने इमोशंस को वेंट आउट करना ऐसे व्यक्ति के साथ में जो कि नॉन जजमेंटल, यानी जजमेंट तो हम ह्यूमन बीइंग है तो जजमेंट तो बनाएंगे ही, बट जजमेंट को बताए बिना हम सुन पाए किसी की बात को, ये बहुत जरूरी है. तो आप अपने इमोशंस को वेंट आउट कर सकते हैं. Okay, thank you so much, doctor. Most welcome. Thank you. Hello. Yes, sir. Yeah, Suresh. My name is Suresh. See, Doctor साहब, आपका जो लेक्चर है really is a wonderful one. बहुत ही concise था, perfect था. I really appreciate. I would like to meet you. Thank you. I am a caregiver, and secondly, I'm around 73, but taking care of my body was very challenging for last 20 years. तो उसमें क्या हो गया, एंजाइटी भी बढ़ गया. एंजाइटी का भी थोड़ा फैमिली हिस्ट्री भी है, एंजाइटी भी होगी. मैं ये दो चीज पूछना चाहते हैं. ब्रेन श्रिंकेज है, कैन इट बी अरेस्टेड? ब्रेन श्रिंकेज को कुछ कर सकते हैं क्या विद डाइट? योगा मेडिटेशन तो मैं करता हूँ, लेकिन ब्रेन श्रिंकेज का कैसा है? यस. सी, ब्रेन श्रिंकेज जो है ना, उस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है. आपको अपने फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है कि मैं कितना फंक्शंस कर पा रहा हूँ अपने रूटीन में. मैं अपना रूटीन फॉलो कर पा रहा हूँ क्या, मैं टाइम पे सो पा रहा हूँ क्या, मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो मुझे रूटीन में करने होते हैं वो मैं कर पा रहा हूँ क्या. क्योंकि आप ब्रेन श्रिंकेज पे ध्यान देंगे, इट इज इररिलेवेंट फॉर अस एक्चुअली. जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफी हेल्दी होते हैं, ब्रेन श्रिंक होने के बाद में भी वो फंक्शनल रह पाते हैं. तो हमको उस बारे में ध्यान नहीं देना है. एंग्जाइटी इज ऑल्सो वेरी कॉमन इशू. मोस्टली 15 to 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एंग्जाइटी किसी न किसी प्रकार से उनको परेशान करती है. लेकिन ये जरूरी है ये समझना कि क्या ये एंग्जाइटी आपके रूटीन को डिस्टर्ब करती है, आपके अटेंशन को डिस्टर्ब करती है, आपके स्लीप को डिस्टर्ब करती है, आपके फोकस को डिस्टर्ब करती है. अगर ये डिस्टर्ब करती है तो इट इज बेटर टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, ताकि क्या है हम इस एंग्जाइटी का कंट्रोल ले पाएं. और एंग्जाइटी जब हमारी कम हो जाती है तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे लाइफ में कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम इंजॉय जिस तरीके से करते हैं चीजों को, या जिस तरीके से हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं, वो काफी अच्छा हो जाता है कई बार. ओके. और सेकेंडली एक चीज थी कि जैसे मेरे ब्रदर को ये स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहता है, मेडिसिन नहीं लेना चाहता है. उनके लिए अगर आपके इसमें लेके आए आनंद तो हो सकता है उनका मतलब डायग्नोसिस भी हो सकता है प्रॉपरली. यस. देखने के बाद में, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में, उनसे बात करने के बाद में ये पॉसिबल है. और जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, ज्यादातर लोग जो डिमेंशिया से ग्रसित होते हैं या और भी किसी प्रकार की सस्पिशियसनेस है, साइकोसिस है, उनसे ग्रसित होते हैं, तो वो खुद को उनको महसूस नहीं होता है कि उनको कोई तकलीफ है, और इसीलिए वो डॉक्टर के पास आने में हिचकिचाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. तो ऐसे में फैमिली मेंबर्स का ये रोल है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले करके जाएं. बिकॉज इवन दो उनको ऐसा लगता है कि वो सफर नहीं कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली दे आर सफरिंग एंड वी ऑल अंडरस्टैंड. ओके. तो उनकी सफरिंग को कम करने के लिए, फैमिली मेंबर्स और केयर गिवर्स की सफरिंग को कम करने के लिए डेफिनेटली वी शुड सीक ट्रीटमेंट.
ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम मुझे इसका सुरेश जी। रिकॉर्डिंग मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यस श्योर श्योर। सर यू कैन लॉग ऑन टू परिसर आशा, हाँ हमारा यूट्यूब चैनल है, तो ये हाँ। रिकॉर्डिंग हम लोग वहां पे अपलोड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आप परिसर आशा के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये ऐसे हमारे जो आज दी एक्सपर्ट सीरीज जैसे आज की है ना, हम लोग पिछले 1 साल से ऑल्टरनेट थर्सडेज को हम लोग किसी ना किसी को बुलाते हैं, बड़े डॉक्टर्स को, और हाँ। अलग अलग टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, और बहुत सारे मतलब ये फोरम खुला रहता है, ऑडियंस कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद द डॉक्टर। थैंक यू मैम। या Hello, doctor. Yes, hi. You're not audible clearly. I guess there's a lag in the voice. कुछ आवाज में, हाँ Hello, बोलिए। doctor. Yes, बताइए। Doctor, myself Kajal Patel. बोलिए I'm काजल। fifth standard. डॉक्टर मेरी मॉम जो है ना वो नहीं आती है। नहीं सुनाई नहीं दिया, आप वापस बात करेंगे? आपका नेटवर्क इशू है ना जो मेरी जो मॉम है ना वो ना रात को 2 बज जाएंगे 3 बज जाएंगे ना, उनको नींद नहीं आती है। राइट। ओके, सो काजल इज और सुबह बेसिकली, भी हाँ सो काजल जो है बेसिकली वो इंसोम्निया के बारे में बात कर रहे हैं, या नींद की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि नींद या इंसोम्निया, नींद नहीं आना या इंसोम्निया इज एन इलनेस। मोस्टली इट इज नॉट। मोस्टली इट इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ एनी अदर इलनेस। नींद नहीं आना अपने आप में ज्यादातर एक लक्षण होता है रादर देन एन इलनेस। तो उसमें जैसे मैंने बोला कि दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहना, या अच्छा महसूस नहीं करना, बेचैन महसूस करना, जैसे अभी गजला जी ने बताया कि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो कई बार नींद बीच में खुल जाती है, हैबिचुएशन हो जाता है। कई बार हम स्लीप हाइजीन नहीं रख पाते हैं, हम समय पे, हम रात लेट नाइट तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कई बार होता है हम इवनिंग में टी पी लेते हैं, तो जो कि ब्रेन स्टिमुलेट करती है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में नहीं रख पाते हैं, और इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करना जरूरी है कि नींद अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है। कई बार हमने देखा है कि लोग खुद से प्रेफर करते हैं कि वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ ऐसी दवा दे दो जिससे मुझे नींद आ जाए, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रीट इंसोम्निया। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे मलेरिया में आपने अगर पैरासीटामोल लिया है तो आपका फीवर तो कंट्रोल में आएगा, लेकिन आपका मलेरिया ठीक नहीं होगा। इसीलिए रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है कि नींद अगर हमें नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। Hello. Yes, doctor. yes Yeah. Can I take a next question? Yes, Yeah. sure, Yogesh ji, बोलिए। Yeah. I'm Dr. Yogesh Kare. I'm an Ayurvedic physician. Yes. Yeah, we get many patients and we need to explain it to the relatives that the Yes. patient is suffering from dementia, and you need to change yourself and the climatic conditions or the atmosphere in the home, rather than just to find medicine for the patient. So can you give some points in which the patient relatives can understand that this is a Yes. patient of dementia, Yes. and Yes. Yes. now is the condition that he has to be taken to a expertise, as many of the patients are reluctant to go Yes, to a yes. psychiatrist, and so how can we Yes. explain it to the Yes, patient? that's a very nice question, Dr. योगेश। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम, हमारे पास पेशेंट कोई लेकर के आता है तो हमारे लिए केवल एक ही आदमी पेशेंट होता है, बाकी लोग उसके रिलेटिव होते हैं या बाकी लोग उसके केयर टेकर्स होते हैं। बट उन केयर टेकर्स में भी हमको डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि कहीं उनको भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो भी एंशियस तो नहीं है, क्या हम उनके इमोशंस को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बढ़ गई है, कि वो काम पे भी जाना है उनको, उनका केयर भी करना है, उनका चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको इरिटेबिलिटी इश्यूज है या उनका मन अच्छा नहीं रहता है। तो उन रिलेटिव से बात करना बहुत जरूरी है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं या आपका मन कैसा है, बिकॉज हम उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि यस, दीज आर माई इमोशंस विच आई एम प्रोजेक्टिंग टू द अदर पर्सन, या जो भी पेशेंट है उनके ऊपर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर
उनके इमोशंस को हम डील कर पाए तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट कई बार होता है कि समझ नहीं आता है, एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है, तो यू कैन टेक सम अदर ऑब्जेक्टिव डेटा, या आप बोल सकते हैं कि आप अगली बार हो सकता है किसी और फैमिली मेंबर्स को साथ में लेकर के आए ताकि हम सब डिटेल में बैठ करके बात कर पाए, क्योंकि पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है समझने की। तो दिस अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बट जैसे मैंने बोला कि जो पेशेंट का केयर गिवर है, ही इज ऑल्सो बर्डन और शी इज ऑल्सो बर्डन। we'll have to acknowledge their emotions, their burdens, and अगर हम वो acknowledge करेंगे, उनको बिठा करके समझाएंगे, तो definitely they will understand. Right. Sir, can you give some cardinal points, like 2 or 3 symptoms that they have to say, these are the symptoms and the patient is patient of dementia? ऐसे कुछ लक्षण हम हाँ, जैसे मैंने बताया कि मेमोरी डेफिसिट्स या बहुत रीसेंट इवेंट्स को भूल जाना, क्या खाना खाया था, सब्जी कौन सी खाई थी, सुबह किससे मिले थे, किसको पैसे दिए थे, चश्मा कहाँ रहा, ये छोटी छोटी चीजें भूल जाना उनकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करता है, अगर उनके रूटीन को डिस्टर्ब करता है। और साथ में कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होता है, तो ऐसे केस में हम मोर और लेस ये बोल पाते हैं कि, और स्पेशली एज फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि 65 या उससे ऊपर हैं और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है इसका, और साइमल्टेनियसली और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ना है, जैसे पार्किंसंस हैं या और कोई अदर फॉर्म ऑफ वेस्कुलर इवेंट्स है, पैरालिसिस है, इस तरह की अगर कंडीशन ना है तो डेफिनेटली हम उनको बोल पाएंगे कि दिस इज मोस्ट प्रोबेबली डिमेंशिया एंड वी विल हैव टू इवैल्यूएट एंड ट्रीट द पेशेंट. Sure. Thank you, sir. Most welcome. Hello, doctor. How many hours sleep is required for about 70 years? Pardon? How many hours of sleep is necessary for the person having age 70 plus? Okay. Minimum hours of sleep. Yes. See, the quantity of sleep usually reduces with age. Okay. छोटा बच्चा जो होता है वो 14-15 घंटे सोता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ में हमारी स्लीप जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो मोस्टली 70 इयर्स ऑफ एज में आपकी इतनी स्लीप होनी चाहिए कि आप सुबह उठ करके फ्रेश महसूस करें, अच्छा महसूस करें, कंप्लीट स्लीप हो गई है वो महसूस करें, चाहे वो आप 5 घंटा सो रहे हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं। बहुत ज्यादा दिन भर थकान या सुस्ती नहीं रहनी चाहिए, और बहुत ज्यादा रात में डिले नहीं होना चाहिए स्लीप, या इंटरमिटेंट अराउजल या बीच बीच में नींद खुलनी नहीं चाहिए, या बहुत जल्दी नहीं खुल जानी चाहिए जैसे हमारा रूटीन है। जैसे मैं गजला जी का एग्जांपल दूंगा कि वो 4:30 बजे रोज उठ जाते हैं, बट इन दिनों वो महसूस कर रहे हैं कि वो 2 बजे उठ जाते हैं या 2:30 बजे उठ जाते हैं। तो दिस इज रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ स्लीप विच इज सिग्निफिकेंट। ये ग्रेजुअली नहीं, ऑल ऑफ अ सडन इनको चेंजेस देखने को मिले। बट मोर और लेस मैं ये बोलूंगा कि 7 hours or 6 hours of sleep is more than sufficient, but you should feel fresh, that quality of sleep is good, and अभी मुझे उठा हूँ या उठी हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी नींद हो गई कंप्लीट. Thank you, doctor. Most welcome. Good evening, sir. This is Kalpana. It was an excellent session. Lot of information and all that. Sir, I just want to know whether dementia patient is chances of getting psychiatric attacks and all that issue. Yeah. See, brain is an organ which controls our behavior also, our motor activity also. But sometimes we fail to understand that brain behavior को control करता है, क्योंकि behavior aspect में हम यही समझते हैं कि कुछ ऊपर का हो गया है या कुछ बाहर की चीज हो गई है। कई बार हम faith healers के पास जाते हैं, तो जहां पर भी आपके न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं या न्यूरोनल डीजनरेशन होता है, वहां डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, क्योंकि ग्रेजुअली मॉडरेट टू सीवियर डिमेंशिया में हमको more or less in 70-80% पेशेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते ही हैं. So we should be aware of that. Okay, sir. And is vertigo and hand tremors related to any dementia, anything? Vertigo problem? Yeah, it depends on the age and comorbid condition. Like I said, there are other conditions also like Parkinsonism. Sometimes, mostly we have seen that in older ages, there are fine tremors which
not make them non-functional. वो पानी भी अच्छे से पी पाते हैं, ग्लास भी अच्छे से पकड़ पाते हैं, सिग्नेचर भी कर पाते हैं, बट अगर हम उनको बोलेंगे कि आप हाथ आगे करें तो हो सकता है उनके हाथ ऐसे कांपे। तो दीज आर सेनाइल ट्रेमर्स। अगर ये बहुत ज्यादा नहीं है और फंक्शनल है तो कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा है, उनकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उनको ट्रीट करना जरूरी है। उसके अलावा डिमेंशिया में भी मस्कुलर वीकनेस की वजह से ट्रेमर्स बढ़ जाते हैं। उसके अलावा पार्किंसंस डिजीज जो होती है उसमें बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं ट्रेमर्स, जिसको हम ये इस तरह के रोलिंग पिन ट्रेमर्स होते हैं, तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। One more thing, sir, is if the patient is taking high blood pressure tablets since so many years, 35 to 40 years, is this problem like of vertigo or hand tremors and all? Is it because of that? No, that's very difficult to say. Like I said कि बाकी चीजें कैसी है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मोर और लेस आपका ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स ब्लड प्रेशर कैसा रहा है, और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसी रही है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि दवा की वजह से जब भी मैं दवा लेती हूँ तब मेरे ट्रेमर्स बढ़ते हैं, या जब मैं दवा नहीं लेती हूँ तो मेरे ट्रेमर्स कम हो जाते हैं, इस तरह का अगर कंडीशन, डेफिनेटली यू शुड मीट योर फिजिशियन कि दवा की वजह से मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सर। Okay, I think questions are over. Any last question, anyone? No, miss. No, okay. So I think let's close the session. So before that, doctor, it was really an eye opener for everyone, and we will be sharing this on YouTube, on Parisar Asha's YouTube. तो आप जिन लोगों को देखना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आप ये सेशन शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद एनी टाइम विद डॉक्टर अक्षय और विद परिसर आशा, यू आर मोस्ट वेलकम। हमने हमारा नंबर भी शेयर कर दिया है। और बिफोर वी लीव, doctor, here's a small token of appreciation and gratitude. So thank you so much for this wonderful thank you so much. Thank you so much. So I think let's stop our session over here. And once again, thank you to the audience also. And I hope now we have understood a lot about dementia, and we will start taking care of ourselves and our near and dear ones also, and who are suffering from that. So maybe at least I think having this session was the main reason was to creating that awareness about dementia, क्योंकि अभी तक इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अगर जो कोई सफर करता है उनको ही इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, but there are a lot of misconceptions also about dementia. So you can feel free to contact us anytime about any particular topic you are feeling, you would like to know or take help. So Parisar Asha ki help completely free of cost hai. So wish you all a great evening and a happy Ganesh Chaturthi, and Ganesh Chaturthi manaiye, lekin take care of all COVID related protocols, and Ganpati Bappa Moria. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for inviting me.